Hello everyone, welcome to Level Up. In today's session, we'll be discussing the syllabus of CUET PG. As you may be knowing, CUET PG is one of the most influential courses that exams one undertake to get admission into PG courses all around the country. So it becomes very important for us to understand what is the syllabus, what is the exam pattern, what are the kind of questions that may come in exams, and what are the topics that you need to cover in order to prepare for the exam. So let's just give a brief overview of what exactly do we need to do to study for CUET PG exam. Now, CUET PG exam has a vast syllabus. History has a vast syllabus in itself, but there are certain topics, certain themes that are really important for us to discuss, right? So it is important for us to know कि not just कि क्या टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, right? On the basis of previous year question paper, you will be able to know there are certain questions, certain things, certain tropes and certain topics that are more important than others, right? It's not कि आप किसी टॉपिक को छोड़ सकते हैं, but if you plan cleverly, if you try to understand the thematic, if you try to understand the exam pattern, you will be able to prepare the exam in a much more comprehensive way, right? So as you may be knowing the broader structure of the exam, that this particular subject specific exam that we are dealing in particular in context of history, right? So in context of history, you will be knowing there are 75 questions that you need to prepare for, subject specific, bilingual. For each right answer, you will be getting 4 marks, and for each wrong answer, you will be deducted -1. So keep away guesswork until unless it is actually calculative, right? There are times when you are not sure about the options, you are confused between different options. So at that point, if you are sure, very much sure about certain options, but you are not able to totally point upon it, you can take calculated risk. But if you are just doing guesswork and assuming that it may get right, then you may get in trouble because it has negative marking. So the syllabus of history is divided into majorly 4-5 sections. Uh, it will be ancient history, early medieval history, modern history, and a bit portions of world history. But the syllabus is not as simple, right? On the surface level, it is chronological, but there will be interlaps. There will be questions where you will be supposed to use your brain, where you will be supposed to, you're expected to have a conceptual understanding of the subject, thematic understanding to apply your cognitive side, right? Why? Because at times the questions on the basis of previous year question paper, you can think there will be certain question that can give you a comparative analysis, a comparative question on world history as well as Indian history. At that point, you must be knowing how to connect these history. There are chronological relations, questions on chronology that coincide between world history and Indian history. So it's not कि आप जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का सिर्फ मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ेंगे, बिकॉज जब व्हेन यू आर डीलिंग विद वर्ल्ड हिस्ट्री you have to be very intelligent enough to know कि what portions are important, and जब आप इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, have a sense of what is happening in the world side by side, because there are questions that were asked last year about the comparative analysis. Like there was a question that was asked about the Neolithic to Bronze Age civilization, the transition from Neolithic to Bronze Age civilization. So उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम. So have a sense of what exactly, how can we connect Indian history to world history. That relation is very important. Second thing, what all topics, what all themes are important for you to read about, right? We will deal it theme by theme. We will deal, each video will be dealing with that particular section, right? If you are dealing with ancient, what are the important section? If we are dealing with ancient, early medieval, what are the important section? So right now we are dealing with ancient history, right? And when we are talking about ancient history, what do we need to take into cognizance? Now
there are certain major ideas that you need to take cognizance of. First thing, you have to be very assured of the idea that chronology is essential. Not just chronology, but also how to compare chronologies, comparative chronologies, right? So one thing is regarding chronologies, how to basically date a particular event, date a particular civilization, but also how does these chronologies exist in relation to each other. So last time the question was asked regarding chronologies कि वैदिक एज का chronology, संगम पीरियड का chronology, प्राकृत का chronology, and all these in the match the column section. So if you are aware कि किसका chronology किसके बाद आएगा, what comes after what, right, it will help you in dating such questions, in answering those kind of questions जहाँ पे chronology आपसे comparatively पूछी जाती है. तो it's not just enough कि आप जो है एक particular आपको date याद है, एक civilization की date याद है, you also need to know the kind of staging, you need to know the process कि what comes after what, right? This is very important. So whenever we are, so this will very helpful for you to understand कि सिलेबस देखकर ही आप बता सकते हैं कि अच्छा इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, बिकॉज इट हैज बीन गिवन क्रोनोलॉजी, तो कीप एन आई ओवर द क्रोनोलॉजी. Second thing, very essential are the sources. Any topic that you are dealing with in ancient history, you have to know what topics are you dealing with, what are the sources for this topic. If you are dealing with Harappan civilization, what are the sources? If you are dealing with Vedic civilization, what are the sources? Mauryan, post-Mauryan, Gupta, post-Gupta, for all these periods you need to know the sources, because a lot of these questions will deal with sources. ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के देखें तो उसमें सोर्सेज के ही रिलेशन में पूछा गया है. ओके, दे विल आस्क यू व्हाट पर्टिकुलर टेक्स्ट हैज बीन रिटन बाय whom, right? Which text is this? Who has written Silabadikaram, or basically relative chronology of text, right? Or authors. तो बाण भट्ट कब हैं, या फिर आपको हर्षचरित कब कब मिलता है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा किरात अर्जुनीय, देयर वाज अ क्वेश्चन on किरात अर्जुनीय, what is the matter of किरात अर्जुनीय, right? So all these things you need to take into consideration. Chronologies of textual traditions, sources very important. Sources in relation to text, what are the important texts for each period, right? Second thing, very important, inscriptions, right? So a lot of important inscriptions can come on in exam. आपके एग्जाम में आ सकता है. It's like last time you remember there were questions about relative inscriptions, dating of inscriptions, ठीक है, ऐहोल inscription और basically हाथी गुम्फा inscription. और if not asked directly, question ऐसे पूछ लेंगे कि what are the topic, what is the subject matter of this particular thing, which inscription tells you about the victory of Nanda, the victories of Maurya, which inscription tells you about the Raja Rudra Daman, right? These kind of questions can be asked. So you have to be sure about 2-3 things. First, if you are reading the sources, source क्या है, कौन से पीरियड से डील करता है, which is the what is the source material, what is the matter of that particular context, right? तो कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइमिंग क्या है, सोर्सेज के बारे में ये चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव क्रोनोलॉजी में भी काम आएगा. एंड इट most of the time in this context questions may come directly on the sources कि ये particular source किस चीज से deal करता है, right? So if you see, when you are dealing with Stone Age, you are dealing with pre-historical period. The thing is, pre-historical period में ज्यादातर चीजें आपको archaeological sources मिलेंगी, and that context you will be dealing with sites, राइट, पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, चैल्कोलिथिक साइट. तो उसमें सोर्स वगैरह का जो पूरा फोकस होगा दैट विल बी ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. एंड दैट टाइम यू इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. यू नीड टू हैव अ सेंस कि अगर आप एक लिस्ट बना ले तो इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा. अ लिस्ट ऑफ पैलियोलिथिक साइट, अ लिस्ट ऑफ मेसोलिथिक साइट, अ लिस्ट ऑफ नियोलिथिक साइट, अ लिस्ट ऑफ चैल्कोलिथिक साइट. ऐसे अगर आपकी लिस्ट बन जाएगी इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, राइट, बिकॉज आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप तो क्रोनोलॉजिकली कैसे डील कर सकते हैं, प्लस कौन से साइट से आपको क्या एविडेंस मिलता है, राइट. तो क्वेश्चन दो तीन तरीके से ही पूछे जाते हैं, और वो चीज आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्ट क्या है,
कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको कौन सा सोर्स मिल रहा है, कौन सी जगह मिल रही है, कौन सी साइट है, ठीक है, उसका क्रोनोलॉजी क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, एंड थर्ड थिंग उसका मैटर क्या है, उसमें से वहां से क्या क्या मिलता है। ऑल दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन डीलिंग विद सोर्सेज। अगर आप सोर्सेज किसी भी टॉपिक का अच्छे से कर लेते हैं, आप मान के चलिए कि लॉट ऑफ योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज, मतलब आपका बेस बन जाएगा, राइट, और बेस बन जाएगा, यू कैन डेवलप अदर थिंग्स ऑन इट, but sources are very essential from an exam point of view. So Stone Age, all these sites, right, majorly आप फोकस कीजिएगा साइट्स पे, और साइट्स में आपको क्या मटेरियल मिलता है। Whenever we are coming to Indus Valley civilization, basically it deals with major sites, right? All the important sites that you can learn about, be it Harappa, be it Mohenjo-daro, be it Chanhodaro, Lothal, Kalibangan, Rangpur, right? All these sites. अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं? Either they will ask you question regarding particular monument, particular structure that is found in this context, कि आपको जो है where do you find plowed agriculture, right? One of the earliest example of pottery, or basically where do you find evidence of fire altars. All these things are important historically, right? So क्या तो आपको साइट के नाम पूछ लेंगे, या उसके क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, विच इज अर्ली हड़प्पन, विच इज मैच्योर हड़प्पन, विच इज लेट हड़प्पन, या आपसे मेजरली पूछेंगे विच इज द मेजर फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर साइट। ठीक है, तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि हड़प्पा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, कहाँ पे कौन सी साइट है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, राइट। नाउ जैसे कि आप लोगों को एक एक दो साल पहले आपसे एक क्वेश्चन आया था अबाउट रिलेटिव साइट, कि व्हाट एग्जैक्टली डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है। तो एनीवन हु हैज रेड अबाउट हड़प्पन साइट विल आइडेंटिफाई, ओके लोथल में मिला है हड़प आपको डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो पर्टिकुलर साइट हैव पर्टिकुलर फीचर, एक उनका एक पर्टिकुलर फीचर है, वो फीचर आपको पता होना चाहिए कि इस साइट से ये चीज याद आती है, राइट। वैदिक सिविलाइजेशन की जहां तक बात है, वैदिक सिविलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट ऑन टू बेसिस। एक तो आपको क्रोनोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, टेक्सचुअलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर द टेक्सचुअल सोर्सेज, आपको वेदास में क्या क्या पोर्शन मिलते हैं, राइट। वेदास के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चन पूछा गया है वेदास के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट कुटुम्बिन लास्ट टाइम, राइट। या फिर आपको जो है पर्टिकुलर वर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया का मतलब पूछा जा सकता है, व्हाट एग्जैक्टली डू मीन सभा, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय विषय, व्हाट डू यू मीन बाय जन गोपी, right? All these kind of words that have specific meaning in the Vedic period, right? या आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी क्या है वैदिक टेक्स्ट की, वैदिक सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी क्या है। These things that you have to keep in mind कि वैदिक सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टेन टर्म्स, और ये एक्चुअली बहुत चीजों के कॉन्टेक्स्ट में वो करेगा कि पॉलिटिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट में देर आर सर्टेन पर्टिकुलर टर्म्स, लाइक when you go to the other cultures like the Mahajanpad period or Mauryan period, you will be getting to know certain administrative terms कि वहाँ पे जो है what were the administrators called, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या कहते थे, वहाँ पे अमात्य क्या होता था, महामात्य क्या होता था। दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड, राइट। so similarly in Vedic civilization also कुल जन विषय, right, all these top themes, all these terms which have specific connotations in Vedic period that needs to be learned for the exam, right? Now, state formation in ancient India. Now, a very direct question was asked about Buddhism and Jainism, right? So, when we say state formation, we are basically dealing with the question of Mahajanpad period. And Mahajanpad period is politically important, it is socially important, and historically, economically important, and religiously important, right? तो कैसे आप लोग जो है महाजनपद का स्टेट फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें आप लोग उसे जनपद है, महाजनपद है, what are the republics and oligarch, गणराज्य क्या हैं, राइट। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। किस तरह से आपको उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप इनको देखेंगे, तो आपको महाजनपदों के नाम पता होने चाहिए, 16 महाजनपद, द गणराज्य, राइट, मेजर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो मौर्यन एम्पायर के पहले भी जो स्टेट थे, राइट,
even within Magad state, when Magad was not an empire, when Magad was emerging as an empire, बहुत सारे important आपको डायनेस्टी देखने को मिलती है. पर्टिकुलरली आप बोलोगे कि शिशुनाग, हरियंक, नंद डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी थी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें आपको जितने इंपॉर्टेंट रूलर मिल रहे हैं, बिंबिसार मिल रहे हैं, अजात शत्रु मिल रहे हैं, राइट, काल अशोक मिल रहे हैं. व्हाट वर द मेजर फीचर्स? आप कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू फाइंड रेफरेंसेस टू दीज पीपल. ठीक है, आपको यहाँ से के का रेफरेंस कहाँ मिलता है? अगेन यू हैव टू अगेन गो बैक टू सोर्सेज. और मेजर सोर्स आपको क्या मिलेगा? बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज. तो आपको बहुत इसको कीनली देखना पड़ेगा कि आपके जो जितने भी सूत्र हैं, आपके जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो त्रिपिटक है, सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, या फिर जो अवदान लिटरेचर है, राइट, लेटर ऑन अवदान लिटरेचर यू फाइंड, इनिशियली यू फाइंड त्रिपिटक लिटरेचर, राइट. what is there in this text? क्या निकायों में क्या क्या मेंशन है? जातक कौन से नैरेटिव का पार्ट है, राइट? what do we find references about particular rulers in these texts, राइट? तो बिंबिसार के बारे में, अजात शत्रु के बारे में, या फिर और भी बाकी जो रूलर्स हैं उनके बारे में कहाँ आपको रेफरेंस मिलता है, राइट? दीज आर थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर यू टू नो, and which are basically historically important from an exam point of view, right? So that goes to age of religion, Buddhism and Jainism. Very important. You need to know major names of major Tirthankars of Jainism, major philosophies of both Buddhism and Jainism. Buddhism के context में there are more chances that you will be asked question related to all these Nikayas, all these kind of texts, Buddhist texts जो आपको देखने को मिलते हैं, plus inscriptions, right? Because Buddhism has a very strong presence in Buddhism, later on art and architecture as well, right? तो किस तरह से आपको रेफरेंसेस यहाँ पर मिलते हैं इन दीज टेक्स्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैनिज्म सिमिलरली यू फाइंड अ लॉट ऑफ टेक्सुअल रेफरेंसेस. तो आप लोगों से पाली, प्राकृत लैंग्वेजेस के प्रचार में रिलीजन का बहुत बड़ा जो है रोल आपको देखने को मिलेगा. दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आपको फिलॉसफी पता होनी चाहिए, ठीक है, इनकी लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए, इनके मेजर टेक्स्ट पता होने चाहिए, इनके मेजर लोग पता होने चाहिए हु बेसिकली आर रेफरेंस इन जैन लिटरेचर, राइट? हु आर द 24 तीर्थंकरस. इफ यू हैव एन आइडिया कि 24 तीर्थंकर्स जो हैं वो कौन है, राइट, देयर एम्बलम दैट इज एसोसिएटेड विद दीज फिगर्स. बुद्धिज्म में यू फाइंड लॉट ऑफ एम्बलम्स एंड सिंबल्स that are associated with Buddhism, right? Gautam Buddha, and then later on Bodhisattva literature. Bodhisattvas are referenced in this context. तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी मेजर फिलोसफीज क्या हैं. बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में द फोर नोबल ट्रूथ, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, ऑल दीज आइडियाज. बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, व्हाट आर द मेजर साइट दैट आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, व्हाट आर द मेजर साइट दैट आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म. ये चीज अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे. देयर आर क्वेश्चन दैट डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन कि 6th सेंचुरी में हु विच इज द मेजर सेक्ट दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट टाइम पूछा गया है. सो इस टॉपिक को काफी आप इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि लिटरेरी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन, फिलोसफिकल, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? मूविंग ऑन टू द मॉडर्न एज वाला क्वेश्चन. मॉडर्न एज का पीरियड जो है, मॉडर्न एज से आपको अगेन 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं. वन अबाउट द डायनेस्टीज. यहाँ से आपको एक बहुत प्रोमिनेंट चीज देखने को मिलेगी, द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है? तो इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई हैं और कौन किसके बाद आया है. यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ कंपैरेटिव क्रोनोलॉजी. मौर्य के बाद कौन आया, मौर्य के बाद शुंग आए हैं, शुंग का टाइम पीरियड क्या है, देन शुंग के बाद अगर कर्ण आए हैं तो कर्ण का टाइम पीरियड क्या है, इंडो सार्थियंस का क्या है, इंडो पार्थियंस का क्या है, ठीक है, कुषाणास का क्या है, सातवाहंस का क्या है. ऑल दीज डायनेस्टीज इमर्जिंग इन द आफ्टरमाथ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. इनका क्रोनोलॉजी डिफाइन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड मेजर रूलर्स, कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. अगर आप मॉडर्न में आपको याद रखते हैं, जनरली हम लोग 3 रूलर्स को याद रखते हैं. वी रिमेंबर either Chandragupta Maurya, then we remember Bindusar, then we remember Ashok. But after that, we lose track of rulers, right? Maybe some perhaps remember Brihadratha as the last Mauryan king because he was murdered by Pushyamitra Shung,
right, and which established the Shung dynasty. So for each of the dynasty there are certain important rulers. तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि they will give ascribe a particular factor and then they will ask कि which ruler is associated with it. ठीक है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न के बाद आपको सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, बहुत सारी डायनेस्टीज जो है लोकली इवॉल्व होती है, बहुत सारी छोटी छोटी सिविलाइजेशन भी इवॉल्व होती है. तो इफ यू आर आस्क्ड कि अच्छा स्तूप सांची का स्तूप या अमरावती का स्तूप, ये स्तूप किसने बनवाया, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसके नाम पे है, और लेटर ऑन व्हेन वी कम टू लेटर पीरियड व्हाट आर डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस दैट वर यूज्ड. ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस किन किन के साथ एसोसिएटेड हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं. या फिर दे कैन बेसिकली आस्क कि कौन सा टेम्पल किसके द्वारा जो है बनाया गया था, या फिर विच स्ट्रक्चर वाज कमीशन बाय whom, राइट. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन द एग्जाम, और आप लोगों से इस तरह से ही पूछा जाएगा. अशोकन इंस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट is the importance of Pillar Edict 13? What is the importance of Rock Edict 13? What is Rock Edict 13? What is the importance of first Rock Edict? जितने भी रॉक एडिक्ट हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं, विच आर द साइट जहाँ पे आपको रॉक एडिक्ट देखने को मिलते हैं, पिलर एडिक्ट देखने को मिलते हैं, स्किज्म एडिक्ट क्या है, क्वीन एडिक्ट क्या है, राइट. सो मेजर थिंग दैट आर एसोसिएटेड विद मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा है, बिंदुसार के साथ जुड़ा है, अशोक के साथ जुड़ा है, तीनों के साथ बहुत प्रोमिनेंट चीजें जुड़ी हुई हैं, राइट. दैट यू नीड टू हैव अ सेंस ऑफ आइडिया कि इनका क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या इनके कमीशन किए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, राइट. व्हाट आर द हु आर द कंटेम्पररीज ऑफ दीज रूलर्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो अगर आप लोग मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को याद कर रहे हैं तो सेल्यूकस निकेटर को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट. अगर आप बिंदुसार को याद रख रहे हैं तो आपको डेरियस को याद रखना पड़ेगा. अगर आप अशोक को याद रख रहे हैं देन यू हैव टू रिमेंबर हिज द कलिंग वॉर, राइट. तो वेयर डू वी फाइंड द रेफरेंसेस टू दिस आइडियाज एंड क्या रेफरेंस मिलते हैं. नाउ यहाँ पे सोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा गया है. लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड अबाउट मेगास्थनीज इंडिका, right. Megasthenes Indica is an important source. Otherwise also we have a lot of sources regarding Mauryan Empire, be it Mudra Rakshas, be it Chanakya अर्थशास्त्र, अशोकन इंस्क्रिप्शन, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट. तो इन सब में जो है मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है. So what are the which are the major sources that are associated with Mauryan Empire, right? तो इंस्क्रिप्शन भी आएगा, लिटरेरी भी आएगा, आर्कियोलॉजिकल भी आएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ सोर्सेज. तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक, शाका, कुशाणा, क्षत्रप, राइट, ऑल दिस किंग्स. और इसमें भी आपको अगेन बहुत से, जैसे मैंने बोला कि सोर्सेज बहुत काम आएंगे. ऑल्सो इंस्क्रिप्शन एज वेल एज न्यूमिज्मेटिक कॉइनेज. ठीक है, आपको जब पंच मार्क कॉइन देखने को मिलते हैं फ्रॉम द महाजनपद पीरियड, व्हाट इज द चेंज दैट वी फाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंच मार्क कॉइन इन इंडिया. ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी स्टडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि उनको पर्टिकुलर कॉइन्स की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती है. उसमें भी क्या होता है कि कौन सा कॉइन कॉपर है, कौन सा कॉइन सिल्वर है. ठीक है, अब कॉइन्स के वेट के बेसिस पे, कॉइन्स के क्वालिटी के बेसिस पे, राइट, उनको जो है आंका जाता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन से कॉइन आपको क्या बताता है, आपके ऑब्वर्स में क्या है, आपके रिवर्स में क्या है कॉइन्स के. व्हाट एग्जैक्टली डू यू फाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉइन्स. ठीक है, तो कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू एस्टैब्लिश द रीजनल ईयर्स ऑफ पर्टिकुलर रूलर, या फिर टू एस्टैब्लिश द रूलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर रूलर. कई बार जो है यू फाइंड एसोसिएट अ पर्टिकुलर रूलर just because you find a coins of that ruler, even though you don't find literary references to particular king, right. तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब आपको देखने को मिलता है द एक्सपेंशन ऑफ न्यूज़मैटिक्स, द एक्सपेंशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, वो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है. बिकॉज मॉडर्न पीरियड में यू डोंट फाइंड एपिथेट्स ऑफ मेजर एपिथेट्स ऑफ किंग, बड़े बड़े टाइटल नहीं रहते. राजन इज अ वेरी सिंपल टर्म दैट इज यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट. लेकिन एज यू मूव ऑन टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो हैं इंपॉर्टेंट जो हैं एपिथेट्स लिए गए हैं. राजा, महाराजा अधिराज, परम भट्टारक, परम ईश्वर, परम भागवत, परम सौगात, राइट. As we move on, we will find major epithets being used by different kings. So many a times a question if you are asked
कि पर्टिकुलर टाइटल किसके साथ एसोसिएटेड है, राइट? सो इट बिकम्स अ पॉइंट दैट यू मे नीड टू लर्न कि कौन से रूलर पर्टिकुलर अपने इंस्क्रिप्शन में अपने लिए क्या एपिथेट यूज करते हैं एंड व्हाट डज सिग्निफाई, राइट? पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दीज आइडियाज। तो आपको कम से कम एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर द डायनेस्टीज, मेन चीज, उसमें कौन से प्रोमिनेंट किंग्स हैं, राइट? एंड मे बी वन और टू थिंग्स अबाउट देयर अचीवमेंट। सो वी विल बी बेसिकली डीलिंग विद दी थिंग्स कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग, but there are broader structures that can come in exam. So when you are dealing with dynasties, important dynasty में क्या है, king कौन है और king ने क्या किया है, right? सारे king equally important नहीं है, there are certain kings which are more important than others. So Kshatrap rulers, Kshatraps are basically the feudatories that started evolving in this period, right? तो नॉर्थ में आपको जो है कई सारे शाक सत्रप मिलते हैं विच सम ऑफ देम जब रूलर कमजोर हो जाते तो दे यूज टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट किंग। ठीक है, नाहपन यू फाइंड रेफरेंसेस टू शाका क्षत्रपाल, सातवाहनास एंड द डबल फेस्ड कॉइन्स, आपको इफेसिंग ऑफ कॉइन्स बाय द क्षत्रप रूलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेमी फ्यूडेटरी स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक दो कुछ जो इम्पोर्टेंट आपको फ्यूडेटरीज देखने को मिलती हैं, यू हैव टू बेसिकली रीड अबाउट देम। ये चीज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अर्ली स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या देखेंगे, साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट फॉर्मेशन हैपेंड इन अ मच लेटर डेट, राइट? तो उसमें आपको संगम लिटरेचर देखने को मिलेगा, आपको तमिलकम देखने को मिलेगा इन पॉलिटिकल सेंस, राइट? तो उसमें आप लोग बात करेंगे चोल, चेर, पांड्य, केरल पुत्र, ऑल दीज काइंड ऑफ किंगडम्स कैसे इवॉल्व हुए, खारवेल, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, राइट? सातवाहंस का आपको रेफरेंस मिला है। इन सब का आपको ये पता होना चाहिए कि विच आर द साइट्स विद एसोसिएटेड विद इट, क्या आपको प्रोमिनेंट इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो इफ यू आर सातवाहनस की बात हो रही है तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, राइट? मेट्रीलिनियलिटी इस्टेब्लिश होती है। या फिर अगर आप खारवेल की बात कर रहे हैं तो खारवेल के कॉन्टेक्स्ट में आप हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, राइट? सो पर्टिकुलर रूलर्स आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर साइट्स और पर्टिकुलर inscriptions or sources, right? So again we have to make a connection, क्या रूलर, कौन सी डायनेस्टी, व्हाट आर द मेजर फीचर, राइट? ये चीज अगर आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब आप डायनेस्टीज के बाद, जैसे हम लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक का टेबल बना के एक स्ट्रक्चर कर दिया, वैसे अनदर टेबल वी कैन मेक अबाउट ऑल द इंस्क्रिप्शंस, what are major texts that are associated with particular period। अच्छा, तो मौर्यन में कौन से टेक्स्ट थे, मौर्यन में कौन से इंस्क्रिप्शन थे, मौर्यन में आपको किस तरह कॉइन मिलता है, ये हो गया। पोस्ट मौर्यन में कौन से डायनेस्टी है, कौन मेजर रूलर हैं, शाकाज में कौन मेजर रूलर है, सातवाहन में कौन है, कुषाण में कौन है, अब इन रूलर्स के किले के साथ कौन सा सोर्स जुड़ा हुआ है, राइट? इस तरह से आपको कनेक्शन बना बैठाना जो है आसान होगा कंपेरेटिवली, rather than reading a lot of these things and trying to mug up, retain as much as possible, because after a point it will be very difficult for you to retain so much information at one go, right? So Sangam age, all these kind of structures, and this also time period led to the formation of initial kind of art and architecture। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको किस तरह का देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कैसा मिलता है, स्तूपास स्तूपास आपको देखने को मिलते हैं, राइट? साउथ इंडिया में आपको किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ कहते हैं केव आर्किटेक्चर आपको प्रोमिनेंटली किस तरह का देखने को मिलता है, राइट? व्हाट द अदर काइंड ऑफ पिलर्स किस तरह के मिलते हैं आपको, स्ट्रक्चर्स किस तरह के मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में किस तरह के आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, किस तरह का आपको बरियल साइट्स मिलते हैं, राइट? साउथ इंडिया कॉन्टेक्स्ट में वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग्स आर द मेगालिथ्स, राइट? एंड मेगालिथ्स में आपको देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बरियल सिस्टम दैट आर फाउंड इन दिस पीरियड। ठीक है, तो मेगालिथ्स में आपको अलग अलग डोलोमाइट्स, टॉपिकल, ऑल दिस काइंड ऑफ बरियल साइट्स आर फाउंड, राइट? सो हैव अ बेसिक आइडिया कि मेगालिथ्स क्या होते हैं, राइट? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बरियल साइट्स। ये चीज जो है आप लोगों के लिए आर्कियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है।
right? As far as the Guptas and Vakatakas, again, when we reach the 4th century, we find Gupta period, we find a lot of gold coins coming in. अब उसमें आपको देखने को मिलता है कि the ruler is representing himself, कभी वीणा बजाते हुए दिखते हैं, कभी जो है व्याघ्र शिकार करते हुए दिखते हैं, right? What are the kind of references that we find, association that we find in the coins? इंस्क्रिप्शन किस तरह का मिलता है? प्रभावती गुप्त का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, राइट? That's a very major inscription because it establishes the connection between the Vakatakas and the Guptas. इससे पहले आपको पोस्ट मॉडर्न में रावाटक इंस्क्रिप्शन मिलता है which established the यूची ट्राइब के साथ रिलेशन, द कुशानाज एंड यूचीज एंड शाकाज, किस तरह का आपको रिलेशनशिप देखने को मिलता है. और उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में यू फाइंड द रेफरेंस टू गंगा रूलर्स हाउ देयर एसोसिएशन विद वराह कल्ट, राइट? तो क्या आपको जो है प्रोमिनेंट सोर्सेज देखने को मिलते हैं, बट द प्रोमिनेंट एसोसिएशन ऑफ किंग्स, हु आर द प्रोमिनेंट किंग्स इन दिस पीरियड, राइट? गुप्ता में बहुत सारे आपको गुप्त मिलेंगे, प्रोमिनेंटली चंद्रगुप्त मिलेंगे, आपको समुद्रगुप्त मिलेंगे. समुद्रगुप्त आप अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ रेफरेंस टू प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति. तो गुप्ता का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, व्हाई डू वी कॉल इट अ प्रोटो फ्यूडल फेज, राइट? और इन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बहुत छोटा रेफरेंस आएगा बट एक आध क्वेश्चन जो है हिस्टोरियोग्राफी पे आता है. लास्ट टाइम यू हैड अ क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑन द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, राइट? तो जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग बोल रहे हैं कि ओके वी आर जस्ट डीलिंग विद फैक्ट्स, right? Because when you are dealing with a course like this, it's an academic course. So even though facts are very important, have a sense of also what scholars have to intervene. तो नेशनलिस्ट स्कॉलर क्या थे, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, मार्क्सिस्ट स्कॉलर क्या थे, राइट? तो इफ यू आर डीलिंग विद फ्यूडलिज्म लेटर ऑन, राइट, you will have to deal with theories. So in this context also, when you are dealing वैदिक पीरियड, आपको हिस्टोरियंस मिलेंगे. So at different point of time, कई बार आपको रेफरेंसेस जरूर हो सकते हैं कि आप कौन से स्कॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, which are the important scholar that are associated with particular thing, right? So for some themes, historiographies are very important, right? तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे पर्टिकुलर स्कॉलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसका नाम हमको याद रखना इंपॉर्टेंट है. नॉट एवरी टॉपिक रिक्वायर्स इट, but there are topics, some of the topics which are for which historiography is important, right? So Gupta is, I think, is a very important topic because it established the proto-feudatory phase, so to say, by Marxist scholars, right? For nationalist scholar, Gupta period was a golden age. So ये जो idea है, it is something based on theory, certain ideas, right? कई बार आपको जो है कई जगहों पे डिबेट वाली चीज मिलेगी कि डिबेटेबल थिंग, राइट? So that in that context, you need to be aware of the historiography, right? Guptas, Vakatakas, Vardhanas. So Vardhan dynasty, which is largely considered to be the rupture point between the ancient and the early medieval. So कि आप लोग देखते हैं हर्षवर्धन, what are the uh, kind of intervention do you find in during this period? 5th-6th century में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, राइट? ऑल दीज आइडियाज. एंड प्लस इस टाइम पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि व्हाट आर द हु आर द प्रोमिनेंट रूलर्स, प्रोमिनेंट पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, ठीक है? तो व्हेन वी आर डीलिंग विद 4th-5th सेंचुरी, फाहियान हो गया, 6th-7th सेंचुरी में ह्वेनसांग हो गया, राइट? तो ह्वेनसांग का एसोसिएशन you will find in the context of south as well as with the Kannauj, right? कि हर्षवर्धन के टाइम पे आ रहे हैं, 642 सी में आ रहे हैं. There was a question that was asked last time I guess, that Huensang came to Kanchipuram during the rule of which ruler, right? तो उसमें आप लोगों को पूरा नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, these kind of options were given, right? So थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा because this was also the period of हर्षवर्धन. तो वर्धन डायनेस्टी का क्या रिलेशन है, right? What was the role of Harshvardhan to promote Buddhism, because Buddhism was also undergoing a period of decline during this period, so to say decline in double inverted commas, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोग इम्पोर्टेंट है पर्टिकुलर पीरियड में, कौन लोग आए, मॉडर्न में मेगास्थनीज आया
या फिर गुप्ता के इसमें फाहियान आ रहे हैं, या फिर उसके बाद वेनसैंग आ रहे हैं, लेटर ऑन इत्सिंग आते हैं, विच पीरियड दे आर कमिंग, व्हाट आर देयर असेसमेंट, ठीक है, उनके टेक्स्ट का नाम क्या है, उनका पीरियड क्या है, ये आप लोगों को आएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है रिलेटिव क्रोनोलॉजी। रूलर के नाम पे आप पूछा कौन से पीरियड में कौन से रूलर के टाइम पे आए हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो यू नीड टू नो कि कौन सा रूलर किस टाइम का है। इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, इफ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, इफ यू नो द रिलेटिव क्रोनोलॉजी। अगर आपको ये पता है कि ये इस पीरियड से बिलोंग करते हैं और इस पीरियड में ये आए थे, तो इट कोइंसाइड्स, राइट। सो कंपैरेटिव chronologies are very important in this period. देन वी फाइंड गुप्ता पीरियड्स में आपको जो रीजनल स्टेट दिए गए हैं, कदम्बा, पल्लवा, चालुक्य, राइट। चालुक्य, पल्लवा, कदम्बा, दीज आर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि गुप्ता पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू फाइंड द नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, बेसार स्टाइल, राइट। what kind of architectural development you find in this context when you are dealing with Pallavas? You are talking about rulers like Narasimhavarman, Mahindra Varman, right? What are their literary contribution? तो आप लोग देखेंगे मत्तविलास प्रहसन, you will find references to Mamalapuram, right? महाबलीपुरम. So it is very important to pinpoint कि इन लोगों का contribution क्या है. What were their political structure? Political structure आप डिस्कस करेंगे तो आप लोग जब साउथ में जाएंगे तो आप लोग नाडू डिस्कस करेंगे, राइट। वट एवर द इम्पोर्टेंस ऑफ नाडू, चोल रूल, चोल पीरियड में स्पेसिफिकली नाडू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग जो है चोल पीरियड की बात करेंगे, इंपीरियल चोलर्स की बात करेंगे, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो इंपीरियल चोलर्स, व्हाट वाज द टाइम पीरियड, उस टाइम पे नाडू कैसे डेवलप हो रहे हैं, नाडू से वल नाडू बन रहे हैं, वल नाडू से मंडल बन रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस उस टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, हाउ इकोनॉमी इज इवॉल्विंग, व्हाट आर द डिफरेंट आइडिया दैट आर एसोसिएटेड विद इट, प्लस the development of religious ideas, right? So scholars talk about Kali age crisis, 4th century का BNS यादव कहते हैं। Even Vaishnavism, Shaivism में you find a lot of new development that are happening, right? पुराण का development आपको जो देखने को मिल रहा है from there. In South India you find the development of Alvars and the Naynars. These are important philosophical and religious development that take place during the period. तो आप लोगों को एक ब्रॉड अगर आप स्ट्रक्चर बना लेंगे कि ये पीरियड है, गुप्ता है, पोस्ट गुप्ता है, ये डायनेस्टी है, इसमें पॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, सोशल चेंजेस क्या हो रहे हैं, कल्चरल चेंजेस क्या हो रहे हैं, राइट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस, अगर ये बना लेंगे तो आप लोग के आइडिया जितने हैं, जितना आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, दैट विल बी कवर्ड। तो मेन जो फीचर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग कि डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको रूलिंग क्लासेस देखने को मिलती हैं, एंड व्हाट आर देयर इंडिविजुअल अचीवमेंट, राइट। Later on, lastly, we find the transition to early medieval period where we find the tripartite struggle. तो आपको राष्ट्रकूटा, पाला, प्रतिहारा, ठीक है, सेनास, what were their rule, क्या उनका emphasis था, what was happening in terms of political changes, ठीक है। कन्नौज के लिए जो लड़ाई हो रही थी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा था, who was fighting with whom, तो मेजर चीज आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। जैसे कि एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था अबाउट द राष्ट्रकूट किंग, राइट। देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा गया कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा, तो ये पूछा जा रहा है किसके टाइम पे हुआ, तो यू हैव टू मेक अ रिलेटिव क्रोनोलॉजी अगेन। दंती दुर्ग के टाइम पे क्या हो रहा है, कृष्ण के टाइम पे क्या हो रहा है, ध्रुव के टाइम पे क्या हो रहा है, अमोघ वर्षा के टाइम पे क्या हो रहा है, what were the major changes or major development that are happening during the period of the above mentioned rulers, right? So again you will follow the same structure, कौन से रूलर हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, किस टाइम पीरियड पे आए, राइट। तो रीजनल ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल ईयर्स अगर आपको याद रहेगा तो आप क्रोनोलॉजी अच्छे से बना पाएंगे, कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद आया, and this is how you can basically prepare, it will make your work easier. अगर आप पढ़ते रह जाएंगे तो it will be difficult for you to retain things. The idea behind this kind of an exercise is to retain as much as you can. For that I would say कि आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिएगा to try to enumerate things.
to try to classify things कि कौन सा data जो है you can put into list and what are the kind of data which requires you to write paragraph. ठीक है, तो political, social, economic, religious में आपको features लिखेंगे, then you can detail it. The name of the dynasty, the regnal years, the major sources, that can be enumerated in the listing. ठीक है, this is how in the context of ancient period we can actually date the whole system. आप लोग कैसे इस चीज को date कर पाएंगे? It will help you to prepare the ancient वाला portion in a much better way, right? I will discuss the other portions uh, in the next video. Will help you in preparing for the CUET PG exams in a much better way and help you in your ability to pass the exam with flying color, right? So we'll provide you the strategies, we'll provide you the insight, we'll provide you how to prepare your exam in a lesser time, because I don't think there is much time left for your preparation, and you have to also deal with the final year of your colleges, right? So one thing that you need to do is start preparing for CUET PG side by side, right? So for that matter, you require a kind of crash course that will be given to you by us, right? So keep following this space, because we will be coming with lot of these things on a daily basis. Okay. So thank you very much. Bye.